हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द बेसिक द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गोटे थिला बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अनदर इज द सेकंड लॉ, नहीं? तो आज हम देखा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड लॉ, second law of electricity, which is popularly known as Coulomb's law. है the second law को हमें कौन कहवा है? Coulomb's law of electricity. Coulomb's law of electrostatic. Coulomb's law of electrostatic. Clear? तो Coulomb's law कौन? प्रथम नेक्स्ट क्लास में कौन था? बेसिक लॉ, फर्स्ट लॉ, द लाइक चार्जेस रिपेल एंड ऑल लाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अर्थात इफ द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देयर एग्जिस्ट ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अर्थात आम प्रथम लॉ कौन पाइले? एक्जिस्टेंस ऑफ द कार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एबे देखिबा जदि दुईटा चार्ज भितर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहिला तले से चार्ज से फोर्स रो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कौन, नहीं? दैट वाला सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टेटमेंट वाला इट स्टेट्स दैट the magnitude of the electrostatic force, the magnitude of the electrostatic force, the magnitude of the electrostatic force कहाँ भीतर है? between two point charges, between two point charges separated by some distance, separated by some distance in a homogeneous medium, in a homogeneous medium, in a homogeneous medium. Hello? कौन कहले? The magnitude of the electrostatic force between the two point charges separated by some distance in a homogeneous medium is directly proportional to the product of the strength of charges, and inversely proportional to the square of the distance, between them. It also acts, but it also depends upon the nature of the intervening medium, nature of the medium,
nature of the medium. It is directed along the line joining their centers. This is the statement of the Coulomb's law. So it states that the magnitude of the electrostatic force that exists between का भितर अछि दिटा चार्ज भितर तार magnitude टा केते प्रथमे we consider the magnitude. Force is a कोन vector quantity, it has both magnitude and direction. First we consider the magnitude, then we decide the direction. The magnitude of the electrostatic force between two point charges separated by some distance in a homogeneous medium is directly proportional to the product of the strength of charge and inversely proportional to the square of the distance between them. This is the magnitude. And this magnitude, it means the magnitude of the force also depends upon the nature of the medium. जो medium हमें रखले से medium ऊपर मध्य निर्भर करे. Our direction कौन? ना it is directed along the line joining their centers. है This part is the magnitude and this part is the direction. तो magnitude कहाँ पर निर्भर कला है? तीनटा factor. कौन कौन अच्छी? ना directly proportional to the product of the strength of the charge. I would like inversely proportional to the square of the distance. I would like a nature of the medium between the two charges. Clear? This is the statement of the Coulomb's law. Hello? तो देखिए explanation. Explanation है suppose we consider 2 point charges. Kali mu kahithili what do I mean by point charge? The dimension of the charge is very small as compared to the distance where its effect is realized by calculated. So this is a point charge and this is also another point charge. So this point charge, let it be Q1 and this point charge, let it be Q2. We consider the magnitude. Plus hai pare, minus hai pare, but we consider the magnitude only. So these are the 2 point charges separated by some distance, let it be R. Ketanali? R. And they are placed in a medium. A bhitar medium rahila. Alani? Tale bartan se kaisi. If the 2 charges are there, there is a force of attraction, there is a force of repulsion. If the 2 like charge, there is a force of repulsion. If the 2 unlike charges, there is a force of attraction. So mane kara, this is the force and force F. So consider 2 point charges, 2 point charges Q1 and Q2 separated by a distance, कहते हैं R. If F be the magnitude of, we first consider the magnitude. If F be the magnitude of the electrostatic force, magnitude of the electrostatic force,
magnitude of the electrostatic force. If F be the magnitude of the electrostatic force that exists between them, ହେଲା force. तो then कौन होगा? तो according to the statement अनुसार कौन कहले? The magnitude of the electrostatic force कौन से तो proportional रे? First stat कौन कहले? is directly proportional to the product of the carrier magnitude by strength of charge. तो F is proportional to Q1 Q2 product of the strength of charge. Second part कौन कहले? Inversely proportional to square of the distance between them. है the first कहले directly proportional to the product of the strength of charge. Second रे कहले inversely proportional to square of the distance between them. Then third part रे last कौन लिखली? It depends upon the nature of the medium. सेटा में परे देखिबा हैला. तले बर्तन एटा कोन पाइले थी? तले that implies तले if he combine these two factors हैला याकु दिरे combine कले कोन बेटा? तले F proportional to केते गला? Q1 Q2 by R square. तले F is equal केते गला? केते गला? Q1 Q2 by R square. So that is equal to केता हुआ? That implies F is equal to some proportionality constant केता नेले? के Q1 Q2 by R square. Clear? तले K is equal F is equal to केता गला? K Q1 Q2 by R square. तले K के where K के रे? Yes. Where K is a proportionality constant but constant of proportionality जा कोई बार where K is a proportionality constant where K is a proportionality constant or it is known as the Coulomb's constant or कौन कहवा है? Coulomb's constant. Coulomb's constant. है ना? Where K is a proportionality constant or Coulomb's constant. है ना? So this is the magnitude of the electrostatic force between the two charges. F is equal to Q1 Q2 by R square. है ना? बुझ पाइला? Next. तो ये जो proportionality constant K और value कौन? Now the value of the proportionality constant K, its value, it means K value, its value depends upon एक रहला का पर निर्भर करे सिस्टम ऑफ यूनिट दैट यूज्ड है को सिस्टम ऑफ यूनिट रे में व्यवहार करू से ता पर निर्भर करे सिस्टम ऑफ यूनिट को सिस्टम रे आमे एक्सप्रेस करिबा क्वांटिटी को के F Q1 Q2 R को सिस्टम यूज कर से अनुसार के र वैल्यू बारिबो आउ कोन दुई रहला मीडियम नेचर ऑफ अ मीडियम तो मीडियम अनुसार के र वैल्यू चेंज हो द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स one is the system of unit that used to measure the other quantities. Another is the nature of the medium in which the two charges are present. ये दीटा ऊपर के र वैल्यू कौन करे डिपेंड करे बर्तन देखिबा तल के र वैल्यू केते जदि हमें कंसीडर करिबा CGS बा हमें कंसीडर करिया नले प्रथम लिखिबा SI इन ए करला इन SI यू नो SI हला तले सिस्टम ऑफ कार इंटरनेशनल सिस्टम जेटा कहछि इन SI एंड एटा ला कोन यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट और लाके मीडियम तले इन SI एंड सपोज मीडियम लखि लिखिए एआर बा फ्री स्पेस एआर और फ्री स्पेस हला तले इन SI and AR or free space. So what is the value of K? Now K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. K is equal to कितने? 1 by
4 pi epsilon 0 है दैट इज इक्वल टू epsilon 0 रो वैल्यू आम काली कही 8.854 इंटू 10 to the power minus 12 है ताले एटा केते जीवो 9 into 10 to the power 9 है ताले if we put the value of pi and epsilon 0 then we get k is equal to केते 9 into 10 to the power 9 ताले what is the unit ताले k रो यूनिट केते हो देखो f कोन कहिथिली f is equal to k q1 q2 by केते गेला r स्क्वायर ताले k केते गेला f into r square by q1 q2 ताले f हला की न्यूटन into r square मीटर स्क्वायर by चार्ज दैट इज कॉल्ड दुईटा चार्ज अछि कूलम स्क्वायर बुझ पाइला ताले यूनिट कोन गेला न्यूटन मीटर स्क्वायर by कूलम स्क्वायर बा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बुझ पाइला ताले एठाला के र वैल्यू जदि के र वैल्यू एति की हुए ताले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ताले फोर्स केते जीवो ताले फोर्स इज इक्वल केते गेला 1 बाय के जगह वैल्यू पुट करिया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r square एला but this can be written as जेतरा में प्रॉब्लम करिवा सेतरा में कोन करिया वैल्यू पुट करिया प्रॉब्लम रे ताले वैल्यू केते हला 9 into 10 to the power 9 एटा लाके q1 q2 by r square ना को सिस्टम एसआई सिस्टम फोर्स केते गेला दिस मच न्यूटन कोन भारी बेटा न्यूटन बुझ पाइला हैला ताल दिस इज द वैल्यू ऑफ k इन SI and AR or free space हैला हैला तो नेक्स्ट हम देखिया सही SI सिस्टम रखिबी हमें मीडियम चेंज कर देली मीडियम कोन चेंज करबी एनी अदर मीडियम एक्सेप्ट AR हैला सेकंड लिखिबा इन SI and any other medium AR और फ्री स्पेस को छाड़ देले आउ जहा रहला एनी अदर मीडियम हैला तो नेक्स्ट क्लास में कहितली द एटा कोन थिला एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी ऑफ AR और फ्री स्पेस व्हिच इज कंसीडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एंड फॉर एनी अदर मीडियम it is different हैला the absolute permittivity is different for different media हैला ताले k केते गेला we can 1 by 4 pi epsilon k केते गेला हमें कोन कले अदर मीडियम नेली ताले अदर मीडियम नेले कोन गेला ताले मीडियम रो परमिटिविटी केते गेला एप्सिलॉन ताले केते लिखली 1 by 4 pi epsilon हैला ताले this can be written as 1 by 4 pi एप्सिलॉन केते काली कहितली एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r हेगला तले एप्सिलॉन इज इक्वल केते एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r तले एटा केते व्हाट इज दिस एटा केते हला 9 into 10 to the 9 तले दिस इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 divided by एप्सिलॉन r divided by एप्सिलॉन r हला तले बे फोर्स केते हला हला ताले एठी यूनिट कोन हो से न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम माइनस 2 ताले एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी व्हिच इज यूनिटलेस हला ताले बे f केते गला ताले f इन एनी अदर मीडियम f इन कोठी इन एनी अदर मीडियम इफ द टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम ताले f केते गला ताले f इज इक्वल टू s केते जीवो k जार केते पुट करबी ताले 1 by 4 pi epsilon q1 by q2 sorry q1 q2 by r square but this can be written as md 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r q1 q2 by r square or this can be written as eta केते हला ठीक 9 into 10 to the power 9 by epsilon r q1 q2 by r square Newton हैला
बुझिपाला ताले एठी हमें कोन जानले रे देखिबा मो कोन कहिथिले थर्ड सेकंड पार्ट रे कोन कहिथिले रे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन का ऊपर नेचर ऑफ द मीडियम कहिथिला ना नहीं केमदी बर्तन देखो तो बर्तन हमें कोन पाइले F in air force in air if the two charges are in air ताले केते वाला एठी केते वाला 9 into 10 to the power 9 q1 q2 by केते वाला r square in air in any other medium केते कहली 9 into 10 to the power 9 divided by epsilon r q1 q2 by r square या पहला ना एयर रे वाला एतिकी एनी अदर मीडियम रे एतिकी तले फॉर डिफरेंट मीडिया हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर सो फोर्स विल बी चेंज्ड हला ना नहीं तो फोर्स का पर निर्भर कला मीडियम पर डिपेंड कला ना नहीं हला नहीं जेतु fm = 9 * 10 to the power 9 अब हम लिख परिया कोन तो एटा केते f तो दिस इज इक्वल टू f by epsilon तल द फोर्स इन एनी अदर मीडियम इज इक्वल टू केते हला फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हला तले हमें दीटा चार्ज एयर रे रखिबा जति की दीटा चार्ज भीतर फोर्स हला तल सेम चार्ज सेति की डिस्टेंस रे हमें कोन करबा आ गुटे मीडियम रे वाटर हो किबा जे कोनोटा मीडियम भीतर रखि दो तले कोन हो सेते बेले द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम विल बी चेंज्ड केमिति चेंज हो ना इटे कोन जा बाय एप्सिलॉन r माने कोन रिड्यूस्ड इनटू एप्सिलॉन r थिले इंक्रीज्ड हला एठी कोन अछि जेहेतु एप्सिलॉन r कोन केते इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एयर रेला 1 एनी अदर मीडियम इज ग्रेटर देन 1 तल जेहेतु एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1 तल एटा कोन हे गला रिड्यूस्ड हे गला हलानी तल अर्थात आमे एयर रे थिला बेले जति की फोर्स बाहरियो दीटा चार्ज भितरे सेते बेले जदि आमे कोनोसी मीडियम भितर रखि दबा ताहाले तमरो फोर्स कोन हबो कमी जिवो पूर्व अपेक्षा कोन हबो कमी जिवो बुझ पाइलो ना नहीं तले हम कोन जानले तले आज एप्सिलॉन r greater than 1 तल that implies तल केते गला fm force between the charge in a medium is less than the force in air बुझबेला तले force between the two charges in a medium should be less than का भितरे the force between the two charge in air सबुठु मैक्सिमम केते हबो एयर रे एवं अन्य मीडियम रे चेंज हो तेनु एठी हमें कोन जानिले द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन का ऊपर द नेचर ऑफ द मीडियम जोटा कि मो सेकंड लाइन ले कहथि बुझला नै एला तमरो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एबे कोन बाहर करिबा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जेतु फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी तले डायरेक्शन ऑफ द फोर्स केमदि बाहर करिबा नै कि तले वर्तमान जेतु फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हाउ कैन आई राइट द फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म क्वेश्चन आसीबो राइट द कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म तल केमदि वेक्टर के लिखिबा वर्तमान कोन कहिथिली एटा ओटे चार्ज थिला q1 एटा चार्ज थिला केते q2 सपोज दिस डिस्टेंस केते r नहीं कि तल डिस्टेंस हला r सपोज q1 exerts a force on q2 q1 exerts a force on का ऊपर q2 हला नहीं जदि q1 q2 ऊपर फोर्स पकेला तेबे तार मैग्नीट्यूड केते हमें पाई गेले दैट इज इक्वल टू k q1 q2 by r square तबे डायरेक्शन कुआडे हबो व्हाट इज द डायरेक्शन तल मने करो एटा ला के r वेक्टर सपोज दिस इज योर एटा के r वेक्टर हला तल डिस्टेंस केते r नेचे तल एटा मने करो तल q1 to q2 जोडा ला द रिलेटेड बी r वेक्टर तल f वेक्टर कोन हबो तले कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हम लिख परिबा कूलम्स फोर्स in vector form नहीं coulomb force in vector form तले how can I write the coulomb force in vector form तले आमे गोटे वेक्टर को केमिति लिखिबा how can I write a vector तले मने करो a गोटे वेक्टर सपोज a गोटे वेक्टर तले how can I express it a वेक्टर केमिति लिखिबा तले एरा कोन रहिछ मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन भी अछि तले मैग्नीट्यूड किए
ए डायरेक्शन किए ए क्या यूनिट वेक्टर है ना नहीं तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट से भाव में कूलम फोर्स जेहेतु ये वेक्टर क्वांटिटी आपको आम वेक्टर केमती लिखा ना ए वेक्टर इज इक्वल टू यस ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनटू कौन तार यूनिट वेक्टर ताले इनटू यूनिट वेक्टर है ताले जेकोसी वेक्टर को आम लिखिपर मैग्नीट्यूड विथ इट्स डायरेक्शनल वेक्टर ताले ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड विथ इट्स डायरेक्शनल वेक्टर ताले व्हाट इज द डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ताले ए वेक्टर देखो ए वेक्टर कुआडे अछि याडे नाही कि एवं एटा कुआडे अछि दिस सपोज दिस इज एटा ला मने कर देखो एटा गोटे यूनिट वेक्टर एटा गोटे कोन नेली यूनिट वेक्टर कोन जानि छ तो यूनिट वेक्टर कोन रे व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर मुझे यदि कहबी हाउ हु कैन डिफाइन यूनिट वेक्टर कहा कहा जाए व्हाट इज एन यूनिट वेक्टर कौन कोई पारिबो कहलो मैग्नीट्यूड 1 आ कौन हम मैग्नीट्यूड देला 1 तापर डायरेक्शन कुआडे एटा हम कहछि यूनिट वेक्टर कहछि मो कहि नै व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर मो कहछि व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर ठीक अछि ओ यूनिट वेक्टर कहा कहबा मैग्नीट्यूड 1 ठीक अछि व्हाट इज द डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन है direction along the vector good तो if a vector is known जदि वेक्टर आमे जानि छे ताहाले आमे तार यूनिट वेक्टर बाहर करबा अदरवाइज वी कांट फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर हैला गोटे वेक्टर देइथिले आमे तार यूनिट वेक्टर पाई परिबा जदि वेक्टर नाही ताले यूनिट वेक्टर कहि परिबा नाही ताले यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 1 this length is 1 and it's directed along the given vector suppose this is the a vector ताले this is your कौन लिखिबा ए क्या suppose this is a b vector ताले एटा कोन होबो b vector ताले this is the b cap बुझबेला नै हैला ताले एठी b cap रे डायरेक्शन जहा a cap रे डायरेक्शन से की बट b cap रो मैग्नीट्यूड जहा a cap रो मैग्नीट्यूड से कारण r मैग्नीट्यूड 1 r भी मैग्नीट्यूड 1 हैला ताले यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 1 and is directed along the given vector बुझबेला नै हैला नि ताले वर्तमान हम एठी देखिबा सपोज वर्तमान एटा गोटे वेक्टर नै कि तो सहीठी वर्तमान मु आ गोटे वेक्टर टाणिली लेट इट बी दिस इज ए वेक्टर ताले एटा सही वेक्टर ना अलग वेक्टर ताले एठू माने कर एटा हला o एटा हला a एटा नेली a वेक्टर सपोज दिस इज b ताले एठी oa जहा ob वेक्टर से या की एठी oa वेक्टर जहा ob वेक्टर से या की चाहे कि ना काहे कि नो जतिबा सेमानकर डायरेक्शन अछि किंतु मैग्नीट्यूड अलग बुझेला नै ताले ए वेक्टर कैन बी चेंज्ड either by changing the magnitude or by changing the direction or by changing both magnitude and direction ताले एठी डायरेक्शन जतिबा समान अछि किंतु लेंथ समान नाही तेणु एटा हे गला अलगा वेक्टर लेट इट बी b वेक्टर ताले एठी a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर but a cap is equal to कते नली b cap आर एटा मैग्नीट्यूड 1 हला b रो मथे यूनिट वेक्टर से मैग्नीट्यूड तेणु एठी a cap is equal to b cap but a vector is not equal to b vector बुझबेला तो बर्तन एठी देखो तले एठी बर्तन कोन अछि दिस इज योर r वेक्टर टा कोठ केते बाट पर्यंत q1 रु q2 पर्यंत दूरता एटा हला r वेक्टर एवं दिस वन इज द किए f वेक्टर तले f वेक्टर एंड r वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन f वेक्टर r वेक्टर कोन अछि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन नै तेणु r यूनिट वेक्टर जा हबो r यूनिट वेक्टर से ही हबो तेणु आमे एठी लिखि परिबा f वेक्टर इज इक्वल टू f इनटू f cap this can be written as f into r cap बुझेला तले f vector is equal to जेहेतु f है r both are in same direction तेणु f vector is equal to f into कते गेला r cap
तो दिस इज इक्वल टू एफ हमें पाई सारे एफ किए ना दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्लियर है गला तल केते पाइली के Q1 Q2 बाई केते हला आर स्क्वायर इंटू आर कैप हला तल दिस इज एफ वेक्टर तो वेक्टर के आम रिप्रेजेंट कले ना नहीं किंबा आपको आम लिख पार देखो जदि ए वेक्टर इज इक्वल टू के गला ए इंटू ए कैप तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए ना दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड है ना नहीं तो बर्तमान आर कैप टाक लिखी कि लिखी ना के ये के गला Q1 Q2 बाई के गला आर स्क्वायर इंटू आर कैप टाक कौन लिखा आर वेक्टर बाय आर तो दिस कैन बी रिटन एज आर वेक्टर बाय आर तो दिस इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज इक्वल टू आर क्यू इंटू आर वेक्टर है तो एफ वेक्टर को यू कैन एक्सप्रेस इन यूनिट वेक्टर एफ वेक्टर को आम भाव लिखिपर तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप बा एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर बुझिपाल है तो ये जो आर कैपटा कौन लिबेबी तो ये आर कैपटा किए रे व्हेयर 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 आर कैप और आर वेक्टर जा लिख पार तो आर कैप कौन हम आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ कहार आर वेक्टर व्हेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर है ये आर वेक्टर किए ना व्हिच इज डायरेक्टेड आर वेक्टर के ना व्हिच इज डायरेक्टेड क्वाडू क्वाड पड़ जाए Q1 लू Q2 Q1 के व्हिच इज डायरेक्टेड फ्रॉम मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम द चार्ज Q चार्ज ना दैट exerts a force on the charge that exerts the force कहाँ पर on another है on कहाँ पर another charge that exerts the force on another charge it is directed from the charge which is directed from the charge that exerts from the force on another है कहाँ पर on another that experiences the force another charge that experiences the force ताले कौन कला ताले गोटे चार्ज अन्य गोटे चार्ज फोर्स पकेब जड़े पकेब आउ गोटे चार्ज द्वारा कौन एक्सपीरियंस माने कौन प्रभावित हम बुझेगा जड़े फोर्स पकेब आउ जड़े फोर्स द्वारा प्रभावित हम ताले एटा किए Q1 आउपरे फोर्स पकेला एवं Q2 फोर्स द्वारा प्रभावित है कौन है आइदर एट्रैक्शन हो पारे बा रिपल्सन हो पारे जदि एट्रैक्शन हम ताले कौन हम जदि रिपल्सन हम कौन हम ताले देखो जदि ये बर्तमान देख Q1 कहाँ पर फोर्स पकेला Q2 उपरे जदि Q1 Q2 उपरे फोर्स पकेवा द्वारा जदि Q1 शेड की गला ताले की फोर्स रिपल्सिव फोर्स ताले जदि फोर्स इज रिपल्सिव ताले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड आर कैप एटा आर कैप व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर आर कैप बाय एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर कौन हो सेम डायरेक्शन है ताले फॉर रिपल्सिव फोर्स ताले लिखिबो for repulsive force यदि force is repulsive तल a vector and r cap बा r vector or r vector are in same direction clear है जदि ये फोर्सटा रिपल्सिव होइथिबो
ताले निश्चित ये दुटा फोर्स कौन हम सेम डायरेक्शन बा एटा आर वेक्टर ए वेक्टर सहित कि आर वेक्टर सहित डायरेक्शन सब। तो नेक्स्ट देखिबा जदि फोर्स एट्रैक्टिव हैला फॉर एट्रैक्टिव फोर्स ताले कौन हम रे फॉर एट्रैक्टिव फोर्स बर्तन देखो सपोज ए फोर्सटा बन कर याडी की न आसिकी बर्तन कौन है याडी की रहला दिस इज द एटा की फोर्स कहबा एट्रैक्टिव फोर्स है ना मने कर Q1 Q2 पे फोर्स पकेला कट टाणिला निज आड़ टाणले एटा की फोर्स हो एट्रैक्टिव फोर्स ताले फॉर एट्रैक्टिव फोर्स ताले व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ना ऑपोजिट टू का सहित आर वेक्टर बुझिबेला नै ताले फॉर एट्रैक्टिव फोर्स ए वेक्टर एंड आर क्या और के आर वेक्टर आर in opposite direction clear are in opposite direction बुझि पाइला तल जदि रिपल्सिव फोर्स हबो तो ए वेक्टर आर के बा आर वेक्टर से द सेम डायरेक्शन हबो आ जदि एट्रैक्टिव फोर्स हबो तल ए वेक्टर आर वेक्टर बा ए वेक्टर सहित कोन हबो ऑपोजिट डायरेक्शन रे रहबो बुझि पाइला नै हैला तो एबे हम देखिबा The Coulomb's law obeys the Newton's third law. केमती वर्तन देखिबा क्वेश्चन is so that the Coulomb's law हला is the consequence of Newton's third law. Newton's third law कौन every action there is equal and opposite reaction हला गोटे बॉडी ऊपर जदि फोर्स अच्छी तल निश्चित आउ गोटे फोर्स अच्छी a single force never be possible in the nature if there is an action there must be a reaction बुझिबेला नै तो बर्तन आम से प्रमाण करवा केमती कूलम्ब फोर्सटा केमिति ओबे करूसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हला द कूलम्ब्स लॉ कंसीक्वेंस बा ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हला कूलम्ब्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन केमती बर्तन देखिए हला प्रूव दैट द कूलम्ब्स लॉ ओबेज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो सपोज वी कंसीडर द टू चार्जेस हला दिस इज ए चार्ज लेट इट बी Q1 हला दिस इज अनदर चार्ज लेट इट बी Q2 तो vectorical nature so this is the charge Q1 and this is the charge let it be Q2 hela they are placed at two different positions with respect to this is your origin and ala origin hela tale bartan eta ki what is this is the position vector of kahero Q1 let it be R1 clear this is your position vector of kahero Q2 let it be eta kete neli R2 hala eta la origin tale Q1 whose position vector is R1 Q2 whose position vector is R2 let it be this is the point A this is the point B hala bujhela next ebe kon bahar kare dekho suppose tale this is the distance हाँ ताले इटा लगते लेंथ बिटवीन क्या क्या भीतर ए एंड बी है नी सपोज मु बर्तन नली दिस एटा है ताले इटा किए तो लेट इट बी आकु मु लिखली द पोजिशन एटा ला किए Q2 द R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 एटा ले कौन वेक्टर नली कौन R2 विथ रेस्पेक्ट के देला 1 R2 1 है नी नेक्स्ट तल देखा तल इन द फिगर रे तल इफ यू अप्लाई द कोटा ट्रायंगल्स लॉ तल ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई कर दिस टू आर इन सेम ऑर्डर दिस इज द रिवर्स ऑर्डर तल दिस इज द रिजल्टेंट जदि एटा रिजल्टेंट लकार एटा तल एटा केते एति की माइनस ऑफ एति हला नी तले लिखि परिबा इन द फिगर हला तले R2 वेक्टर
R2 vector is equal to R1 vector plus এটা কেতে R21 vector. Clear? R2 vector is equal to R1 plus this because these two are in same direction. So that implies R21 vector কেতে গেলা, that is equal to R2 vector minus of কেতে নেলি R1 vector ହେଲା। তাহলে what is the magnitude? তাহলে R21 vector ର magnitude is equal to কেতে গেলা R2 vector minus of R1 vector magnitude, that is equal to কি length of AB, that is the length of AB ର length, AB length বুঝ পেলো নাই, এটি ভেক্টর নয়, দিস ইজ দ্য স্ট্রেট লাইন AB length ହେଲା। তাহলে বর্তমান দেখো এটা কোন পাইলি এবে দেখিবা ହେଲା। তাহলে বর্তমান এইঠু দি কি এটা হলো কি কিউ আর এটা কোন লিখলি 1 2 R1 2, সপোজ মু এপটু ডিরেকশন দেলি এটা কোন হয়ে গেল R1 2 ভেক্টর নাই কি, তাহলে R1 2 ভেক্টর কেতে হবে ହେଲା। তাহলে R1 2 ভেক্টর দেখো কিন বাহার করিবা, তাহলে বর্তমান দেখো এইটা এইটা কোন রইলা সেম ডিরেকশন, দিস কে রইলা সেম ডিরেকশন, তাহলে কোন লিখবা, তাহলে R1 ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কেতে লিখলি R2 ভেক্টর প্লাস কেতে হলা R1 2 ভেক্টর হলা নাই। তাহলে হোয়াট অ্যাবাউট R1 2 ভেক্টর, তাহলে R1 2 ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কেতে গেলা, তাহলে R1 ভেক্টর মাইনাস অফ কেতে লিখলি R2 ভেক্টর ହେଲା নাই ହେଲା। তাহলে বর্তমানে আগুর কোন ভাষারি ম্যাগনিটিউড নে এটা, তাহলে R1 ভেক্টর মাইনাস অফ এটি, তাহলে দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ মাইনাস কেতে লিখলি এটা R2 ভেক্টর মাইনাস অফ কেতে R1 ভেক্টর জানা নাই। তাহলে এটা কেতে বার দিলা R2 1 ভেক্টর, তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস R21 ভেক্টর বুঝ পাইলা কেতে হলা এটা R1 2, তাহলে R1 2 ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু অপোজিট অফ কার R21 ভেক্টর বুঝ পাইলা না। এবে আমি বাহার করিবা আর আ উপরে ফোর্স কেতে আর আ উপরে ফোর্স কেতে ହେଲା দেখো চলো। suppose we consider the two charges are like ହେଲା, তাহলে ইয়া উপরে কোন ফোর্স পকেব, this is the force, let it be this force is equal to the force of কার এটা এ ফোর্সটা কার ফোর্স এটা কার উপরে পড়ছে Q2 উপরে, তাহলে Q2 উপরে কে পকেইলা Q1 পকেইলা, তাহলে মনে কর this is the force কার on to কার এ কর ହେଲା। তাহলে if F21 ହେଲା the force on Q2 কাজ গো না due to Q1 সেবেলা হবে বর্তমান দেখো এটাও দেখো, তাহলে এটা কেতে গেলা, তাহলে ফোর্স অন কা উপরে 1 কাজ গো 2 যোগ, তাহলে F12, তাহলে F12 হলা কি ফোর্স অন Q1 ডিউ টু কাজ গো Q2 ହେଲା। তাহলে এবে বাহার কর, তাহলে হোয়াট ইজ F21, yes can you tell me what is F21, তাহলে ফোর্স কেতে ম্যাগনিটিউড উইথ ডিরেকশন, তাহলে ম্যাগনিটিউড কেতে K Q1 Q2 বাই ডিসটেন্স, তাহলে K Q1 Q2 বাই ডিসটেন্স কে A to B length of AB ହେଲା। তাহলে this can be written as কেতে হলা এটা আর এটা কেতে আছে লেন্থ হলা কেতে, এটা কি ভেক্টর আছে R21, তাহলে R21 ভেক্টর র ম্যাগনিটিউড ହେଲା উইথ ডিরেকশন ହେଲା, উইথ কার ডিরেকশন, কিংবা উই ক্যান রাইট R Q ইনটু কেতে রইলা R21 ভেক্টর ହେଲା। তাহলে R21 ইজ ইকুয়াল টু কেতে লিখলি K Q1 Q2 বাই RQ ইনটু R ভেক্টর, এটি R স্কয়ার লিখলে এটি কোন লিখবি R ক্যাপ লিখবি, এটি যদি RQ লিখবি এটি কোন লিখবি R ভেক্টর, তাহলে R ভেক্টর কি এটি কি ভিতরে ডিসটেন্স কি R21 ভেক্টর। নেক্সট তাহলে F12 কেতে গেলা F12 তাহলে কেতে গো
ताले के Q1 Q2 by R12 रो Q into R12 vector ହେଲା ताले R21 vector लाती गेला R12 vector लाती गेला ହେଲା ताले वर्तमान एटा केते this is equal to K Q1 Q2 वर्तमान देखो एठे जति डिस्टेंस है एठे जति डिस्टेंस है ना नहीं ए रु बी जति की बाट बी रु ए सिटी बाट लेंथ समान किंतु डायरेक्शन अलग तेणु आम कौन लिख पार ताले R12 जगह से R21 लिख पारी ताले R21 ल Q हैला इनटू एठी कौन अछि R12 टा कौन कहली माइनस ऑफ R21 हैला नी प्रथम बाहर कले ताले माइनस ऑफ केते लिखले R21 वेक्टर हैला ताले केते गेला एटा ताले दिस इज इक्वल टू माइनस ने आसो और लगते के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय एटा केते गेला R21 ल वेक्टर Q इनटू R21 वेक्टर हैला ताले एटा केते ए वेक्टरटा केते एटा केते बाहरछ एति ताले F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय दिस इनटू दिस ना नहीं ताले इज इक्वल टू केते बाहरला ताले F माइनस F21 vector that is equal to K F12 vector हैला ना नहीं ताले F12 vector is equal to minus of F21 vector हैला ताले F21 vector is equal to negative of कहारो F21 vector ताले ठीक कौन पाइले आ माने कौन both are equal and opposite हैला ताले F12 vector and F is equal to negative of F21 vector that means F12 vector and F2 vector are equal and opposite so one is the action and another is a reaction this is the Newton's third law बुझियला नै ताले हम लिख परिबा ताले F12 vector is equal to minus of F21 vector that implies F12 vector and F21 vector are equal in magnitude and opposite in direction हैला in opposite in direction बुझेला नै so this is your कोन पहले में न्यूटन्स थर्ड लॉ हैला ताले गोटे जदि एक्शन हैला अन्यटा रिएक्शन कारण एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट हैला ताले दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्लियर दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हैला नी ताले जेमति न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ले एवरी सॉरी को पहले द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट एठी मध्य ये आपरे जति फोर्स ए आपरे जति फोर्स पकेला बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड हैला ऑपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो द कूलम्स लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कहारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बुझेला नै हैला नी कोड बुझी पाला नहीं सब बुझी पाला आओ कहबे ना कोछ हां कोछ दिरो कोन कोछ कोठे बुझी पाइलानी तमन केते पिला हां बंद कर